Hi everyone, it's me, your manuishu, and welcome back to my YouTube channel manuishu ACCA classes. So in this video, we are going to do reconciliation of budgeted and actual profit question from the Kaplan Kit of F2. In the previous video, I had completed the variance questions in the 3 part. You can access those videos from my channel and by going through the playlist. Okay, so if you're watching my video for the first time, don't forget to hit the bell icon as well as to subscribe my channel, and if you think it's really important, share it among your friends as well so that they could also have the benefit. And more important thing, you can clear your doubts by asking me on the Telegram or Instagram or Facebook, wherever you feel easy. Okay, so before starting the question, at the first question of the variance analysis, I had explained the operating statement under the both absorption costing system and marginal costing system. I hope you guys are familiar with that statement. It's very important from exam point of view. Let's copy and paste those format once again. Question number is 379. So yeah, so this one is the operating statement for the marginal costing system. Costing system, there will be budgeted contribution, but in case of a absorption costing system, there will be a budgeted profit. Oh shit, same thing I have been copied twice. Okay, so this one is, let's remove this. Okay, ओके मार्जिनल कॉस्टिंग सिस्टम है. मार्जिनल कॉस्टिंग सिस्टम मैंने एब्जॉर्प्शन का शायद नहीं करवाया है. ओके, नो प्रॉब्लम, आई विल डू इट राइट नाउ. ओके, बट एक चीज़ ध्यान दें, इन केस ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग सिस्टम वहाँ पे आपका बजटेड कंट्रीब्यूशन मिलेगा, बट इन केस ऑफ योर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग सिस्टम यू विल गेट budgeted profit at the top of the statement. ठीक है. So what the question is asking, what is the actual contribution for the last month? You can see the actual contribution is here on the statement. ये value find करने को कह रहा है. So we do have a sales price variance. Okay, no issue. Sales price variance is adverse. It means negative 3100. Let's put the value whatever the given in the question. जो like item का value दिया है उसको हम लोग format में रखते चलते हैं. And adverse means negative, favorable means positive. Sales volume contribution variance, sales volume contribution variance ये होगा, and it's also adverse. Okay, direct material price variance. अब ये सब जो variance है, यहाँ पे मैंने एक लाइन दिया है other variable variance. तो यहाँ पे जो पेस्ट करके यहाँ रख देती हूँ. सो अदर वेरिएबल में हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में. द फर्स्ट वन इज डायरेक्ट मटेरियल यूजेस वेरिएंस. ठीक है, एंड व्हाट्स द अमाउंट गिवन. अमाउंट गिवन इज 1986 फेवरेबल and minus 2200 is adverse for the direct material. Oh sorry, this one is uses, this one is price. मैंने उल्टा कर दिया. डायरेक्ट मटेरियल प्राइस वेरिएंस. ओके, उसके बाद क्या है हमारे पास, डायरेक्ट लेबर रेट वेरिएंस. ये आप वेरिएंस वगैरह आप खुद से लिख लेना, मैं बस समझा दे रही हूँ हाउ टू डू इट. डायरेक्ट लेबर efficiency variance, variable overhead expenditure variance, variable overhead efficiency variance. अब वैल्यू क्या क्या दिया है, लेट्स पुट इट ऑन. अब क्या है, डायरेक्ट लेबर रेट वेरिएंस. सो इट्स एडवर्स 1090, 5 से 12 एडवर्स. इफिशिएंसी आपका अगेन एक्सपेंडिचर इज फेवरेबल 1216 एंड ये एडवर्स है 1465. सो नाउ क्वेश्चन इज आस्किंग द एक्चुअल कंट्रीब्यूशन
Okay, and at the start of the question told the budgeted contribution for the last month was 43,900, but the following are the variance arose. So हमारा budgeted contribution ये अमाउंट कितना दिया हुआ है 43,900. ओके, सो इसको सॉल्व करने पे वी विल गेट द स्टैंडर्ड कंट्रीब्यूशन ऑन द एक्चुअल सेल्स. ठीक है, एंड वी नो द सेल्स प्राइस वेरिएंस. इसके बाद हम लोग इसको एडजस्ट करने पे, इसको मतलब सम अप करने पे वी विल गेट द एक्चुअल सेल्स लेस स्टैंडर्ड मार्जिनल कॉस्ट ऑफ सेल्स. अब ये आने के बाद हम लोग सारे वेरिएबल को एडजस्ट कर देंगे. एडजस्ट मतलब ऐड सबट्रैक्ट जो भी है, इसमें सारे को एडजस्ट करने के बाद वी विल गेट द फाइनल अमाउंट विच इज 38635. ओके ओके. सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? ओके, सो नाउ जो क्वेश्चन है ये आपका है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग सिस्टम का. सो इसका पहले फॉर्मेट लिख लेते हैं. ओके, सो फॉर्मेट लेट्स कॉपी आउट. मैं एक बार नोट खोल लूँ अपना फॉर्मेट का. नोट्स ओके, हाँ यही है. ये मार्जिन का, ये द बजटेड का. ओके, मार्जिन आई मीन एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग. ओके, सो दिस वन इज क्वेश्चन नंबर 380. सो अब ऑपरेटिंग स्टेटमेंट बनाते हैं किसका? अब बनाएंगे हम लोग एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग ऑपरेटिंग स्टेटमेंट. एवरीथिंग इज सेम, हल्का स्लाइटली डिफरेंस है. सो यहाँ पे सबसे पहले आ जाएगा आपका एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग स्टेटमेंट फॉर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग सिस्टम. ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा बजटेड प्रॉफिट नॉट कंट्रीब्यूशन. ओके, प्रॉफिट का स्पेलिंग गलत है. ओके, सो यहाँ पे स्टैंडर्ड प्रॉफिट इन केस ऑफ डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन है दिया, इन दैट केस वी नीड टू कैलकुलेट एंड द फॉर्मूला इज PSQ इनटू स्टैंडर्ड प्रॉफिट. ओके, सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस विल बी, यहाँ पे अब सेल्स वॉल्यूम प्रॉफिट वेरिएंस हो जाएगा. पहले क्या था सेल्स वॉल्यूम कंट्रीब्यूशन वेरिएंस, अब यहाँ पे प्रॉफिट वेरिएंस आएगा. ये सब हटा देते हैं, ये तो अब समझ में आ जाएगा. इफ इट इज नेगेटिव देन ऐड पॉजिटिव, सॉरी इफ इट इज पॉजिटिव ऐड, नेगेटिव सब्ट्रैक्ट. सो अब ये हो जाएगा स्टैंडर्ड प्रॉफिट ऑन एक्चुअल सेल्स. अब ये हो जाएगा स्टैंडर्ड प्रॉफिट ऑन एक्चुअल सेल्स. ये कंट्रीब्यूशन भी हट जाएगा, दिस विल बी नाउ प्रॉफिट. सेल्स प्राइस वेरिएंस विल बी सेम. इसके बाद भी ये अब नेगेटिव पॉजिटिव आने पे डिपेंड करता है. इसके अकॉर्डिंग ये एक्चुअल सेल्स स्टैंडर्ड ये हो जाएगा अब फुल. ठीक है, फुल कॉस्ट ऑफ सेल्स. ये ठीक है. अब अदर वेरिएबल्स में सारे आएंगे. अब यहाँ पे एक चीज़ नहीं आएगा आपका, ये जो है ना आपका ये एक्चुअल कंट्रीब्यूशन वगैरह ये सब आपका नहीं आएगा. ये हटा देते हैं. ओके, इसके जगह पे हमारा आएगा फिक्स एक्सपेंडिचर वेरिएंस. ठीक है, यहाँ पे फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस डाल देती हूँ, ये से समझ में आ जाएगा. और इनकेस वॉल्यूम वेरिएंस इज नॉट गिवन, आपको इफिशिएंसी एंड कैपेसिटी दिया होगा उसको भी आप रख सकते हो यहाँ पे, पर वॉल्यूम इफिशिएंसी कैपेसिटी तीनों एक साथ नहीं रखना है. ठीक है, आइदर यू कीप द कैपेसिटी और इफिशिएंसी वाला वेरिएंस और सिंपली वॉल्यूम वेरिएंस. ये होने के बाद ये सब पे डिपेंड करता है, ये आपका
ये नेगेटिव आएगा, ये पॉजिटिव सब में लागू होगा और डायरेक्ट आपका एक्चुअल प्रॉफिट आ जाएगा अब। ठीक है, इतना है इसमें। आपका ऊपर के जैसे लाइक बजटेड वाला एक्सपेंडिचर वो घटाना कुछ नहीं है, डायरेक्ट सिंपल आपका एक्चुअल प्रॉफिट आएगा। सो नाउ लेट्स सी व्हाट द काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन गिवन इन द क्वेश्चन. The question is asking if the budgeted profit for the period was 250,000, what was the actual profit? So budgeted profit is given. ठीक है. budgeted profit कितना है हमारा अमाउंट? 250,123. ठीक है. उसके बाद we do have a sales price variance दिया हुआ है, कितना है? फेवरेबल, तो 1500 फेवरेबल. And sales volume variance is negative, so 2100. Solving this we can get standard profit on the actual sales, वो आ गया. अब sales price variance भी पता है, तो we can calculate the actual sales less standard full cost of sales. ठीक है. अब other variable में क्या क्या हम लोग को दिया हुआ है वो देखते हैं. Material price variance 4200 adverse, so negative. Uses variance 1500 positive. Labor rate 900 favorable. Direct labor efficiency variance minus 450 adverse. Fixed overhead expenditure variance, ये आपका वेरिएबल का कुछ नहीं दिया हुआ है, so let's remove this. इसका कोई काम ही नहीं है. So now आपका फिक्स्ड वॉल्यूम दिया हुआ है डायरेक्टली, so और एक्सपेंडिचर दिया हुआ है 1750 फेवरेबल माइनस 1800. होप यहाँ तक क्लियर है. आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 381. What if the actual profit for the period was 7170? What was the budgeted profit? अब उल्टा करने को बोल दिया. अभी एक्चुअल प्रॉफिट पूछा था, अभी एक्चुअल प्रॉफिट ही दिया हुआ है, नाउ बजटेड प्रॉफिट बोल रहा है कैलकुलेट करने को. सो क्वेश्चन इस टाइप के ही आएंगे आपको एग्जाम में. स्ट्रेट फॉरवर्ड तो कुछ नहीं होता है ACCA में. सो 381. ओके. So now we need to calculate the budgeted profit or actual profit is given. What is the amount for actual profit? 7170. And sales price variance पता है, it's given 200 favorable. 350 favorable volume दिया हुआ है. Okay. So material price variance is given. It's 250 favorable. 120 adverse. 120 adverse for the material uses variance. Labor rate variance. Labor rate variance is your minus 450 adverse. Efficiency 800 adverse. Fixed overhead and expenditure. Okay, 860 is the volume and 600 favorable is the expenditure variance. So now अब हम लोग को उल्टा रिवर्स कैलकुलेशन करना है. सपोज ये आपका x है, ठीक है. तो यहाँ पे क्या अमाउंट आएगा आपका? x प्लस 350 आ जाएगा ऐड करने के बाद. यहाँ पे भी क्या आ जाएगा? x प्लस 350 प्लस 200, सो इट मीन्स 550. ठीक है. अब इसमें से सब एडजस्ट करके ये लिख, अब यहाँ पे दिखाती हूँ मैं आपको. सो ये x प्लस 550 में प्लस 250 होगा माइनस 120 होगा. ये मैं सारे वेरिएंस को लिख रही हूँ. माइनस 450 माइनस 800 माइनस 860 प्लस 600 इक्वल टू 7170. सो नाउ x इक्वल टू माइनस 550 माइनस 250 प्लस 120 प्लस 450 प्लस 800 प्लस 860 माइनस 600. सो ये करने पे 8000 तो आ रहा है आंसर. ओके. सो आगे चलते हैं.
382, and this one is last question. So I must say you guys to try it once by yourself. easy है, ज़्यादा कुछ टफ नहीं है. आपको यहाँ पे बजटेड प्रॉफिट भी दिया हुआ है, सेल्स प्राइस वेरिएंस दिया हुआ है, सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस भी दिया है, प्राइस मटेरियल लेबर रेट से फाइंड आउट करना है. सेम यही क्वेश्चन है और नथिंग, ऐसे ही आपको सॉल्व करना है. सो आई मस्ट से यू गाइस टू ट्राई इट बाय योर ऑन साइड, सो दैट आपको भी आइडिया हो. सो इन नेक्स्ट वीडियो वी विल do remaining question from the variance from BPP kit. Okay, so thank you so much guys for watching my video. If you like or it really think it's very helpful, please share it among your friends so that they could also have the benefit. And don't forget to follow me on the Instagram as well. Have a good day.